Hello, myself Dr. Hina Dawa, and I welcome you to Textbook Super Coaching app. In this session, we are going to study about models of curriculum development, one of the most important topic of your UGC NET syllabus, and one of the most prominent area जहाँ से question for sure exam में आएगा. That means there is not even a single thought. आप ये नहीं सोच सकते कि क्या इस बार इसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा. That means यहाँ से आना ही है क्वेश्चन. So, we will be starting with one of the most important topics today, that is models of curriculum development. So, the agenda of this session will be to cover the what is the basic definition of curriculum design and curriculum development. I repeat, I will be telling you, I will be explaining you what is curriculum design and what is curriculum development. यू अभी सोच रहे होगे कि मैम ये दोनों ही सिमिलर टर्म्स है बट आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड डेवलपमेंट. The second important thing that we will be discussing in the today's session will be present session will be the two models that we are going to study today. The most important model. One is your Taylor model, other is your Tapa model. And at the end, I'll also explain you the difference between the Taylor and the Tapa model. So, before beginning with the basic definition of curriculum design, I just have a question. Exactly, पहली चीज तो ये आती है कि curriculum itself क्या होता है. I know you know what is the curriculum, but we are going to right now revise what is a curriculum. Clear? So, अगर हम बात करते हैं curriculum की, curriculum, इसमें दो नहीं तीन शब्द आते हैं. करिकुलम इज द सम टोटल. सम टोटल किसका? करिकुलर एस्पेक्ट्स का, यानी पाठ्यक्रम में जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स है करिकुलम. फिर आता है कोर करिकुलम. That means co-scholastic. That means the children who are going to play, who field activities, art, music, dance, drama, all the kind of other activities, morning assembly, which are organized in the school. And the third one is learning experiences, which gives you the practical value. That means अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, वो क्लास में पढ़ाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ही इज लर्निंग और स्टडिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसको न्यूटन्स के लॉ पढ़ाए जा रहे हैं. को करिकुलर का मीनिंग हुआ जब बच्चा स्पोर्ट्स में म्यूजिक, डांस, ड्रामा, मॉर्निंग असेंबली में पार्टिसिपेट. Now, what is learning experiences? जब हम असेंबली में खड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन चल, यू विल रियलाइज देयर विल बी लॉट ऑफ, हम लोग काफी सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग करते हैं, देशभक्ति के गाने गाते हैं. यू विल हैव लॉट ऑफ प्ले सेशंस आल्सो, थिएटर सेशंस आल्सो इन द स्कूल, ड्रामा होगा. उस समय पे आप रियलाइज करते हैं जैसे ही कोई देशभक्ति का गाना आता है, आपके गूस बम्स आ जाते हैं. For a second, you have that strong feeling for the love of your nation. What is that? Part of learning experiences. Now, if you take an example of the curricular aspect, आपने सीखा to every action is a reaction. आपने उसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखा, जितना तेज स्पीड करा उतनी तेज गाड़ी आगे भागी. So again, you have noticed to every action there is a reaction. आपने उसको practically उसको study करा, practically उसको समझा, and you were able to see the valid results. Even this is an example of learning experiences. So yes, curriculum is a sum total of curricular plus co-curricular plus learning experiences. So I hope इसमें अब कोई गलती हम कभी नहीं करने वाले. So the next time I ask you students what is the definition or what is the basic concept of curriculum, so the moment I say this, आपका आंसर आना चाहिए मैम it's a sum total of curricular plus co-curricular plus learning experiences. Okay. Now when I sit down to design a curriculum, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार क्लास 5th के बच्चों के लिए curriculum डिजाइन करूँ. बस मैंने सोचा क्या I can make a curriculum just by thinking that I have to make. No. I have to prepare a curriculum draft for the students of class 5th. Is that the second's job?
इज दैट कैन बी डन विद इन 24 आवर्स? क्या मैं उसको 2 दिन में 10 दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ? द आंसर इज नो. First of all, I have to frame my objectives. I have to set my goals. Objective meaning कि what all parameters I have to include in this class 5th curriculum. यानी मैं इस करिकुलम के जरिए बच्चों को क्या क्या अचीव करने में हेल्प करूंगी. ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि उनके मैथ्स के जितने भी ऑपरेशन स्किल्स है, कैलकुलेटिव पावर है, वो इंक्रीज हो. मैं चाहूंगी कि बच्चे का साइंटिफिक आउटलुक डेवलप हो. देन आई विल ऑल्सो वांट दैट चिल्ड्रन शुड बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल लेवल, है ना. तो ये सारे तो मेरे गोल्स हो गए जो मैं इस करिकुलम के जरिए अचीव करना चाहती हूँ. सो व्हाट ऑल आई वॉन्ट टू अचीव. ठीक है, इस करिकुलम के जरिए मैं क्या क्या अचीव करना चाहती हूँ. उसके लिए बहुत जरूरी है बच्चों को प्रेजेंट में स्टडी करना. यानी बच्चों की नीड्स क्या है, बच्चों का आईक्यू लेवल क्या है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चों का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है. ओनली देन आई कैन फ्रेम अ सुटेबल करिकुलम. नाउ फॉर एग्जांपल माय स्टूडेंट्स बिलोंग टू रूरल एरिया एंड आई एम राइटिंग कि मैं आईसीटी से पढ़ाऊंगी. सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम बिकॉज हो सकता है रूरल एरिया में काफी बच्चों को आईसीटी टेक्नोलॉजी यूज ही ना करनी आती होगी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप उनकी नीड्स को एनालाइज कीजिए एंड देन आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कीजिए. सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स ऑफ द लर्नर्स. क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू, आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, बच्चों का नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने हैं. क्लियर? सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लर्नर्स फॉर द लर्नर्स, सॉरी, यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लर्नर्स by analyzing their needs. So first step is objectives after analyzing the needs of the learners. Now the second step is planning. प्लानिंग का मतलब होता है आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करोगे, हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. आपने ये जो ऑब्जेक्टिव सेट करे आप उनको अचीव कैसे करने वाले हैं. सो इसमें दो चीज आती है. पहला होता है डिजाइन, द सेकंड वन इज डेवलप. डिजाइन मीन्स आप यू आर फ्रेमिंग द ब्लूप्रिंट. देखिए, अगर यू वांट, आई वांट टू वेयर अ coat suit. Okay, I want to wear a coat suit, a blazer suit on my birthday. So मैं Google सर्च कर रही हूँ for some images of good coat suit, blazer suit की अच्छी अच्छी फोटोज निकाल. And then I went to the tailor और मैंने टेलर को वो images शेयर करा जिस तरह का मुझे सूट चाहिए, the kind of blazer suit I want. I am sharing those pictures to the tailor and tailor is making a rough picture of it. That is called designing blueprint. Exactly हम क्या करना चाह रहे हैं. Develop means when tailor will sit down and start stitching your blazer suit. वो उसको बनाना स्टार्ट कर देगा. So design means जब आप एक blueprint ready करते हो, and develop means when you are giving it a full-fledged form. That means आप उसको properly develop कर लेते हो, you give it some shape. आप उसको already उस पे workout कर रहे हो और आपकी सब चीजें ready हैं. That is called development, where you have actually developed things. But designing is like a blueprint, what you are thinking of doing. What exactly will be your blueprint or your action chart, your framework. Clear? Then third step is implementation, which is also called as your transaction phase. So now what happens in this transaction phase? Whatever is ready with me, I am going to go to the classroom, I am going to deliver that. तो करिकुलम फ्रेमिंग का थर्ड स्टेप क्या हुआ कि आप क्लासरूम में गए और आपने जो भी रेडी किया था अपने बच्चों को पढ़ा दिया. सो टीच, अब आपके प्लानिंग में जैसे टीचिंग मेथड्स आते हैं, टीचिंग एड्स आते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज आते हैं, ये सब कुछ आपका प्लानिंग में आता है, इवन योर कंटेंट. Clear? So even that is part of your planning phase. So now what will happen, what is going to happen in the third stage, which was I was telling about, was implementation stage. Implementation stage में क्या होता है, it's basically the classroom delivery process, जहां पे आप करिकुलम को ट्रांसैक्ट कर देते हो क्लास में.
ठीक है, आप पढ़ाते हो बच्चों को। एंड द लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मींस जहां पे आप ओवरऑल अपने करिकुलम के स्ट्रेंथ, वीकनेस, इम्प्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करते हो, आप अपने करिकुलम का ओवरऑल इफेक्टिवनेस लेवल जज करते हो। Clear? So the shortcut to remember your complete curriculum process is OPIE, which is the shortcut given by us to our students. ऑब्जेक्टिव्स, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स यानी आप बच्चों की नीड्स को एनालाइज करते हो, उनके लिए गोल सेट करते हो। पी मीन्स प्लानिंग, जिसमें आपका डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों आता है। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, कंटेंट, आपका असेसमेंट टूल्स, सब कुछ आप रेडी करके रख देते हो। इम्प्लीमेंटेशन इज आप क्लासरूम में गए, आपने वही सब बच्चों को डिलीवर कर दिया। एंड इवैल्यूएशन मीन्स जो ये ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट करे थे, क्या ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए या फिर नहीं? Are you able to achieve those objectives which you have set in the step number 1? If yes, your evaluation is successful. If not, what all improvement is to be done in the next cycle? Fine. So I hope this will be on your tips now, that what exactly is OPIE and what is design and what is development. So now I will be moving towards the session in which I will be telling you now. I've given you complete idea कि curriculum design क्या होता है. So now let us define curriculum design. Design का मतलब होता है हर एक डायमेंशन ऑफ करिकुलम को कंसिडर करते हुए आपने अपना ड्राफ्ट रेडी कर लिया है, आपका ब्लूप्रिंट रेडी है, योर ब्लूप्रिंट इज रेडी। एंड उसमें आप ये भी बताएंगे कि आप बच्चों को किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने वाले हैं। यानी करिकुलम डिजाइन के अंदर आप कंटेंट रेडी करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर आपने कंटेंट रेडी करा, देन कंटेंट को प्रॉपरली अरेंज करना। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल योर ऑब्जेक्टिव इज कि माय स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू परफॉर्म addition, multiplication, division and subtraction in a very quick manner. They should be able to develop the abilities of multiplication, addition, division and subtraction. So ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएटर करते हुए आप अपना कंटेंट रेडी करोगे। ऑब्वियसली इस कंटेंट में आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इंक्लूड करोगे। आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शंस वगैरह तो नहीं लेके जाओगे, आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशंस तो नहीं लेके जाओगे ना, जो कंटेंट उससे मैच होगा वही लोगे। फिर इस कंटेंट को आप अरेंज कैसे करोगे? अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट, यानी इजी से डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पार्ट टू होल, मतलब आप किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हो। पहले डेफिनेशन दोगे, फिर आप उसको सॉल्व करके दिखाओगे, देन यू विल गिव सम क्वेश्चंस जहां पे टीचर ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करेगा, एंड देन फाइनली यू विल गिव फ्यू क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स जो वो खुद प्रैक्टिस करेंगे। यानी सीक्वेंस क्या रहने वाला है। इसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मेरे टीचिंग मेथड्स क्या होने वाले हैं, ठीक है, lecture method, demonstration, activity, project, whatever method you are going to use. Then मैं इसके साथ टीचिंग एड्स क्या यूज करूंगा? क्या मैं क्लास में प्रोजेक्टर पे सिखाऊंगा, स्मार्ट क्लासरूम है, पीपीटी यूज करूंगा, या फिर मैं चार्ट लेके जाऊंगा, और आई विल बी यूजिंग सम मॉडल्स। सो व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स? एंड देन आप इनका असेसमेंट कैसे करोगे? यानी बच्चे को समझ आ गई है हर चीज, उसको समझ आ रहा है या नहीं। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के लिए आप जो भी टूल्स यूज करोगे वो यहीं पर ही रेडी हो जाए। सो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग विल बी रेडी इन दी प्लानिंग स्टेज। क्लियर? सो इवन करिकुलम डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग स्टेज। नाउ अब मॉडल्स क्या होते हैं? करिकुलम डिजाइन तो समझ आ गया जब हम ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट को रेडी करना एक सिस्टमैटिक मैनर में इज द पार्ट ऑफ मॉडल्स। आपने जो भी ब्लूप्रिंट रेडी करा है सिस्टमैटिक मैनर में, स्टेप बाय स्टेप मैनर में, वो कैसे करा है? इट इज विद द हेल्प ऑफ दीज
मॉडल्स. सो व्हाट हैपेंस, मॉडल का मतलब होता है अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, अ सिस्टमैटिक मैनर of preparing your curriculum. So giving your curriculum a holistic, a complete form, a complete holistic comprehensive form is done with the help of the models. यानी ये मॉडल क्या करते हैं, संरचना करने में आपकी हेल्प करते हैं. I hope by now everything is clear. अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो यू हैव अ डाउट सेक्शन ऑन योर ऐप, आप वहां जाके अपनी डाउट पोस्ट कर सकते हैं. आई क्लियर योर. ओके, अलॉन्ग विद दैट अगर आपको कभी भी कोई डाउट रहता है आप मुझे टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं. आई क्लियर योर डाउट. सो आई होप वैसे कोई डाउट होगा नहीं. I know my students, you all are able to, actually learn the things in the class itself. So, if in case you find any sort of doubt, I am there for you always. चले हम मॉडल्स की तरफ चले. So the very first model is traditional model or the Taylor's model. So from the photo itself it is clear किसने दिया है मॉडल, ये मॉडल दिया है रैल्फ टेलर. And the other name of this model is objective centered. Can you tell me why do we call it as an objective centered model? अच्छा चलो, I am calling it as objective centered model. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आपने अपने गोल सेट करे हैं, जो आपने अपने लिए बेसिकली क्या आप अचीव करना चाहते हैं, व्हाट टू अचीव. क्लियर? यानी आपका जो फोकस है किस पर है, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर है. गोल क्या है, हाउ टू अचीव दैट गोल एंड वेदर आई हैव अचीव दैट गोल और नॉट. इसी रीजन से इस मॉडल को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल, बिकॉज ऑल द टाइम आपकी जो साइकिल है ना वो इसी बात पे घूमती है कि क्या मैंने गोल सेट किया और मैं उसको कैसे अचीव कर लूं, एंड देन फाइनली ये जज करना वेदर आई हैव अचीव्ड इट और नॉट. दिस इज द रीजन आप इसको एक ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल बोलते हैं, गिवन बाय रैल्फ टेलर. क्लियर? एंड इसको ट्रेडिशनल मॉडल इसलिए कहा जाता है, व्हाई, because it is the oldest model. ये सबसे पुराना, it is one of the oldest model. क्लियर? अब इस मॉडल में होता क्या है, इस मॉडल में आपके पास रहते हैं टोटल 4 स्टेप्स. दिस मॉडल हैज टोटल 4 स्टेप्स, जिसको आप 4 प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो, जिसको आप 4 क्वेश्चंस भी कह सकते हो. अब एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि मैम स्टेप्स है या प्रिंसिपल है, क्वेश्चन है. एग्जाम में वो आपको कुछ भी लिख सकते हैं, स्टेप्स, प्रिंसिपल्स और क्वेश्चन. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स. जो मैंने अभी आपको 4 स्टेप्स बताए ना वही है OPIE. दैट मीन्स आप क्या अचीव करना चाहते हो, व्हाट टू अचीव. और उन ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने के साथ साथ आप लर्नर्स की नीड्स को भी आइडेंटिफाई करते हो, लर्नर की नीड्स और आपके सब्जेक्ट की नीड. व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मतलब आपके एकेडमिक्स की जो नीड है, एकेडमिकली आपकी क्या नीड है. क्लियर? स्टेप नंबर 2 जो होता है वो होता है आपका प्लानिंग. प्लानिंग में क्या क्या आता है आपका, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या कंटेंट होगा, कैसे आप उस कंटेंट को अरेंज करेंगे, देन आप लोग क्या टीचिंग मेथड्स यूज करोगे, देन क्या टीचिंग एड्स यूज करोगे, एंड देन फाइनली व्हाट विल बी योर असेसमेंट रूल्स. क्लियर? थर्ड स्टेप से इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांजैक्शन. यानी आप क्लासरूम में जाके ये सब कुछ प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के साथ फॉलो करो. You will teach the students. And the fourth one is evaluation. To check whether आपके जो ये objectives हैं ये अचीव हुए या नहीं हुए. So the fourth step is evaluation. Fine? बढ़िया से clear? Now, the question is, सारा का सारा फोकस तो यहाँ ऑब्जेक्टिव्स पर है ना. इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना
कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है एकेडमिक्स के जिनको आप पढ़ाना चाहते हो स्टूडेंट्स को। दैट इज वाई ये एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडल भी है जहां पे कंटेंट के ऊपर, कोर्स के ऊपर, एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। सो द कंप्लीट रिवॉल्व, okay, the complete movement rotation of the model is around the subject matter content. Clear? So the first step, like I told you, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्कूल के पर्पस क्या है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हो, जिसको आप गोल्स भी कह सकते हो। देन सेकंड स्टेप इज उन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई किया जाए जो आपको गोल्स तक लेके जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू प्लान आउट एवरीथिंग। थर्ड इज ऑर्गेनाइज, जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हो और ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी कहते हो। एंड द फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन, जहां पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंप्रूवमेंट, इफेक्टिवनेस जज की जाती है। फाइन एवरीबॉडी? क्लियर? गुड। So remember, this model is more subjective in nature. That means यहाँ पर कंटेंट, एकेडमिक सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल है। So this is the most common and most widely used model. सबसे ज्यादा ये मॉडल यूज किया जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मॉडल, जिसका जो फोकस है सब्जेक्ट्स के ऊपर है। इट इज हैविंग अ सब्जेक्ट सेंटर्ड ओरिएंटेशन। दैट मींस यहाँ पर विषय विषय पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। दैट मींस योर एकेडमिक पार्ट, योर सब्जेक्ट्स, कोर्स करिकुलम, कोर्स के ऊपर यहाँ फोकस किया जाता है। So the complete curriculum is revolving around the content, the subject matter, the courses, the subjects to be studied. Clear? And yes, coming to the most important point, आपको क्या लगता है? What do you think? Is it easy to frame the course? यानी कोर्स बनाने का यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हायर अथॉरिटीज के पास रहता है। The higher authority is going to decide everything, because यहाँ फोकस किस पे है? सब्जेक्ट्स के ऊपर। सब्जेक्ट मतलब आपके जो एकेडमिक कोर्स है, विषय के एकेडमिक कोर्सेज के ऊपर यहाँ पे फोकस है। तो ये सारा रूल किसका रहता है? ये हायर अथॉरिटीज यानी स्कूल के प्रिंसिपल्स कह लीजिए, या फिर स्कूल की ड्यूटी होती है पूरा का पूरा कोर्स को रेडी करना, करिकुलम को रेडी करना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? स्कूल के प्रिंसिपल्स। एंड देन दिस इज इन्फॉर्म टू द टीचर्स, एंड देन टीचर्स विल इन्फॉर्म दैट टू द स्टूडेंट्स। इसी रीजन से ये मॉडल टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। विच अप्रोच? टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये जो मॉडल है ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग has to be controlled by the school. School is going to inform the teacher and teachers will inform the students. Now one more important thing is कि टेलर का जो मॉडल है वो फॉलो करता है स्पाइरल अप्रोच। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्पाइरल? आपने स्प्रिंग देखा है जो रिमोट में जहां पे आप सेल डालते हो, वट एवर रिमोट कंट्रोलर्स है आपके घर में, टाटा स्काई का रिमोट कंट्रोलर, एसी का रिमोट कंट्रोलर, यू ऑल हैव सीन वी पुट सेल इन दैट। ऐसे हम सेल्स लगाते हैं ना दो, तभी वो रिमोट कंट्रोल ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने स्प्रिंग देखा हो, स्प्रिंग की शेप क्या होती है? लाइक दिस। दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू राइज अप यू हैव टू गो डाउन। अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो पहले नीचे, ऊपर उठना चाहते हो तो नीचे, ऊपर उठना चाहते हो तो नीचे। अगर आपके पुराने कंटेंट पे मास्टरी नहीं है तो आप न्यू पर प्रोसीड नहीं कर सकते। So if you want to proceed to the new level, you have to come down to the lower, up, down. तो अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो बहुत जरूरी है आपको पहले पुराने कंटेंट के ऊपर मास्टरी करना।
So unless you don't have the mastery over the previous content, you cannot move to the next level. This is called as your spiral approach. So you need to progress. For that, you need to have complete mastery over the previous content. So advantages is it is the most easily used model, very easy to use, very simple. अगर आप बच्चों का मार्क्स चेक करना चाहते हो, इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग मेथड चेक करना चाहते हो, बहुत सिंपल है. पहले बच्चों का टेस्ट लो, लेक्चर मेथड से पढ़ाओ, फिर दोबारा टेस्ट लो. पहले बच्चों का टेस्ट लो, प्री टेस्ट, देन आप उनको एक्टिविटी मेथड से पढ़ाओ, देन पोस्ट टेस्ट. दोनों को कंपेयर कर दो, पता लग जाएगा कौन सा मेथड इजी है. सो दिस इज हाउ दिस मॉडल विल हेल्प यू टू चेक आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट मेथड्स. इट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड. देखा जाए तो ज्यादा स्कूल में एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है. So there is less focus on the child, there is more focus on the सब्जेक्ट एंड द कंटेंट टू बी डिलीवर्ड. जैसे अभी भी हम देखें तो फिलहाल एनटीए की तरफ से ये है कि हमें आपको सारा कंटेंट पढ़ाना है. आपकी चॉइस तो नहीं है ना यहाँ पे, यू हैव टू स्टडी. क्लियर. एंड द डिसएडवांटेज इज लर्नर की नीड्स पर यहाँ फोकस नहीं किया जाता है. सो द नीड्स ऑफ द लर्नर्स आर नॉट एड्रेस्ड. देन लर्नर का रोल यहाँ पे कैसा है? पैसिव. लर्नर इज नॉट एन एक्टिव वन. तो बच्चा अगर पैसिव होगा तो कुछ नया भी नहीं कर पाएगा. सो देयर इज नो क्रिएटिविटी. सो द चाइल्ड इज पैसिव, देयर इज नो क्रिएटिविटी. एंड यहाँ पे जो टीचर्स का रोल है वो भी कम है, मिनिमम रोल ऑफ द टीचर. क्लियर. सो यहाँ पे जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर है. फाइन. And now we proceed towards the next model, which is just the opposite of Taylor's model. एक शब्द में अगर मैं बताऊं टाबा मॉडल क्या है, ऑपोजिट है टेलर मॉडल. But before we do that, let me first of all revise the complete Taylor's model. I will be revising the Taylor's model. तो एक बार शॉर्ट में टेलर्स मॉडल को रिवाइज कर लेते हैं. आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है टेलर्स मॉडल में. फर्स्ट थिंग इज कि इसको ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल भी कहते हैं या फिर ट्रेडिशनल मॉडल भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल मॉडल. सो दिस इज द समरी फॉर द टेलर्स मॉडल. नाउ द कंप्लीट मॉडल फॉलोज 4 steps or 4 principles. And what are those 4 principles? Objectives, planning, implementation and the evaluation. Complete focus is on what? सारा का सारा जो focus है वो subjects के ऊपर है और academics के ऊपर है. The complete focus is on the academics. Fine. The complete focus is on the academics. Now the fourth point, important point is it follows top-down approach. क्यों? क्योंकि मेन रोल यहाँ पे किसका रहता है? स्कूल का, या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स का. मैक्सिमम पावर, जिसको आप कहते हैं मैक्सिमम पावर किसके पास है? मैक्सिमम ऑटोनॉमी कह लीजिए किसके पास है? स्कूल के पास, हेड्स के पास. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इट फॉलोज अ डिडक्टिव अप्रोच. डिडक्टिव अप्रोच यानी कि सारे डिसीजंस ले लिए जाते हैं, देन उनको बच्चों पे इंप्लीमेंट किया जाता है. सो व्हाटएवर डिसीजंस विल बी टेकन बाय द टॉप अथॉरिटी, वो सारे डिसीजंस बच्चों पे लागू होंगे. यानी हम जनरल डिसीजन से मूव करते हैं हर एक बच्चे के ऊपर स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन पे. यानी जो भी कोर्स बना दिया गया है वो हर एक बच्चे को पढ़ना है, जनरल टू स्पेसिफिक. सो दिस इज द कंप्लीट समराइजेशन ऑफ द टेलर्स मॉडल. एंड ट्रस्ट मी, इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है. गेट इट साइंड फ्रॉम मी, इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. ओनली क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम दिस पार्ट विल कम फ्रॉम दिस स्लाइड. And the last sixth point which I have missed is it follows spiral. That means अगर आप न्यू लेवल पे जाना चाहते हो तो it is very important to master the previous concept. If you want to move to the next, you have to master the previous one. Now, we will be moving towards the TABA model, which is just the opposite to Taylor's model. Opposite to
टेलर्स मॉडल. फाइन. दैट मीन्स यहां क्या होता है, व्हाट डज टाबा मॉडल डज. टाबा मॉडल का मीनिंग समझिए पहले. जो टाबा मॉडल है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैज ग्रास रूट मॉडल. ग्रास का मतलब क्या होता है, जमीन से जुड़ा हुआ, ऐसे ही होता है ना ग्रास. रूट्स मतलब नीचे जो होते हैं, है ना. यानी यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. देखिए अगर आपके रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग विंड और आप उड़ जाओगे. अगर मान लीजिए इस प्लांट के पास कोई रूट्स नहीं है, हवा का झोंका आया, ये प्लांट गिर जाए. एंड वहीं अगर इस प्लांट के जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है तो वो यहाँ से ग्रिप बहुत स्ट्रांग रहेगा. when the strong will be coming, this grip will hold the plant tight. Am I right? और हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एक बच्चे का, एक चाइल्ड, एक स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कब होता है, जब टीचर उसकी नीड्स को स्टडी करता है. So teacher is going to identify the needs of the students and then teacher will frame the curriculum. जबकि टेलर मॉडल में क्या होता था, करिकुलम स्कूल बनाता था एंड देन उसको स्टूडेंट्स पे इंप्लीमेंट किया जाता था. टेलर टाबा ऑपोजिट है. यानी टाबा मॉडल में टीचर प्लस स्टूडेंट्स विल डिसाइड द करिकुलम एंड वो करिकुलम बता दिया जाएगा स्कूल अथॉरिटीज को. दैट मीन्स टॉप डाउन की जगह हो गया बॉटम अप. क्लियर. सो टॉप डाउन की जगह हो गया बॉटम अप मॉडल. सो यहाँ पे आप स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स को स्टडी करते हुए जनरल करिकुलम बनाते हो विच इज कॉल्ड एज योर इंडक्टिव अप्रोच. इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द टेलर्स मॉडल. दैट मीन्स आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो, ना कि डिडक्टिव अप्रोच. इट इज द inductive approach. Fine. So the duty of the teacher is to identify the needs of the students and then frame the curriculum. So यहाँ पे इस मॉडल में मैक्सिमम रोल, मैक्सिमम ऑटोनॉमी, मैक्सिमम पावर किसके पास होती है, मैक्सिमम पावर होती है टीचर के पास. दिस इज द क्वेश्चन विच इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम 5 टाइम्स. डेमोक्रेटिक रोल टीचर का कहाँ होता है, टाबा मॉडल में होता है डेमोक्रेटिक रोल. तो टाबा मॉडल में 7 स्टेप्स है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, ये 7 स्टेप आप ओपीआई से रिलेट कर सकते हो. आपको सिर्फ ओपीआई याद रखना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाए. तो पहला स्टेप ओपीआई में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाना. लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे बनाते हो, लर्नर्स की नीड को समझ के. सो नीड्स ऑफ द लर्नर इज द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर. आई टोल्ड यू ओपीआई से सब रिलेट होगा. सो ऑब्जेक्टिव्स बनाने से पहले आप नीड्स स्टडी करते हो. किसकी नीड्स, लर्नर्स की नीड्स. सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्टिव. थर्ड इज प्लानिंग. मैंने आपको बताया ना ओपीआई में क्या होता है, प्लानिंग. प्लानिंग में क्या क्या आता है आपका, कंटेंट. तो थर्ड स्टेप इज कंटेंट. फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था, और अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट. आई सेड यू ना इट्स और अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू इजी और इजी टू डिफिकल्ट. सो द फोर्थ स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट. क्लियर. देन मैंने आई टोल्ड यू after the arrangement of the content, it is teaching methods and teaching aids. Am I right? So the fifth point is your selection of learning experiences where you will have your teaching methods and teaching aids. Then sixth point is implementation, OPI implementation, and seventh point is your evaluation. The same procedure exactly as it is. So organization means implementation in which एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप हर एक चीज क्लास में जाके ट्रांसैक्ट कर देते हो, डिलीवर कर देते हो. एंड इवैल्यूएशन में आप ये चेक करते हो वेदर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट. सो इफ आई ड्रॉ ओपीआई फॉर दीज स्टेप्स, लेट मी शो यू. सो आई टोल्ड यू ओपीआई. सो द फर्स्ट स्टेप इज नीड्स, सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्टिव्स. ये दोनों किस में आ गए, ओ में.
Then third step is your content, selection of content. Fourth step is arrangement of content. And fifth step is learning experiences. Am I right? ये किस में आ गया? प्लानिंग फेज में. सिक्स्थ इज ऑर्गेनाइजेशन, जिसका दूसरा नाम होता है इम्प्लीमेंटेशन, या फिर आप कह सकते हैं implementation, practical implementation, practical work, transaction, delivery, classroom delivery, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं. So implementation. And the seventh one is evaluation, that is OPI, evaluation. So just remember OPI, बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा. Clear? Fine. Now what is the biggest advantage of this model? It is user, learner friendly. It is learner friendly. Fine. तो बेसिकली टेलर्स मॉडल में क्या रहता है? टेलर्स मॉडल में मैक्सिमम पावर किसके पास होता है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम फ्रीडम, मैक्सिमम डेमोक्रेसी यहाँ पे किसके पास रहती है? टीचर के पास. सो टीचर विद द स्टूडेंट्स is going to make the curriculum, and then that curriculum will be informed to the top authority. Fine. So this is the question which comes. मैं आपको सारे कीवर्ड दे रही हूँ. मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम फ्रीडम, डेमोक्रेसी, मैक्सिमम ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी means responsibility. Again, it is with the teachers. So I hope this will be very clear. Now we will make a summarization of Taylor's model, the concept map, Taba's model, sorry. So it is called as grassroots. Then maximum freedom, power, democracy, autonomy is with the teachers. Clear? Total 7 steps, which I told you. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, जिसमें नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. पी में आता है आपका कंटेंट, अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. देन इज योर आई, इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन इट इज योर ई. सो 3, 4, 5, 6, 7 steps. Then it follows bottom up approach. I explained you why, because teacher is making the curriculum with the students. Next is it follows inductive approach. Why inductive? Because from analyzing बच्चों की needs को समझते हुए, which is specific in nature, आप बढ़ते हैं towards a general curriculum. So after analyzing the needs of your learners, you are going to draft a curriculum for your students. Fine. So these are the main points of the Taba model, and it is just the opposite of Taylor. Opposite of Taylor's model. Thumbs up. Hilda Taba. So this model was given by whom? Hilda Taba. Now coming to the last part, what is the difference between Taylor and Taba model? So the basic difference is in Taba model is inductive in nature. Why inductive? Because आप move करते हो from the specific needs of the learners towards the general curriculum. Fine. Whereas Taylor is a deductive model because school authority बता देगा क्या curriculum है, which is implemented by the teachers and which has to be followed by the schools, by the students also. तो Taba model रहता है bottom up, whereas Taylor's model is top down in approach, top down. सो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो टीचर्स के पास रहती है. मैक्सिमम पावर इज विद द टीचर्स. टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. यहाँ पे टॉप अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड एवरीथिंग. सो हियर टीचर हैज द मैक्सिमम फ्रीडम. मैक्सिमम फ्रीडम टीचर्स के पास यहाँ रहता है. यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीडम इज विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स. क्लियर? इट हैज टोटल 7 स्टेप्स. यहाँ 7 स्टेप्स रहते हैं, यहाँ पे 4 स्टेप्स. सिंपल. सो द बेसिक डिफरेंस इज जो आपका टाबा मॉडल होता है, इट इज बॉटम अप एंड इंडक्टिव, एंड टेलर्स मॉडल इज टॉप डाउन अप्रोच, विच इज डिडक्टिव.
दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू. यहाँ पे मैक्सिमम टीचर के पास फ्रीडम रहती है. इन द केस ऑफ टेलर्स मिनिमम फ्रीडम इज गिवन टू द टीचर. यहाँ पे जो हेड्स होते हैं उनके पास मैक्सिमम. Simple. So I'm very sure none of you is going to forget anything from this part ever again. Trust me, जितना अभी हमने इस सेशन में कवर किया है, I can give you a promise, question यहीं से आएगा in the next year. Not even a single question can come outside whatever is being taught to you today. So इसमें से एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं आने वाली एग्जाम में. It will as it is come from this part. So thank you for joining. Take care. Good luck and keep learning and keep studying hard. See you soon.